الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
ایک کے دو حضرات، عید کی نماز کھڑی ہونے میں صرف 1 منٹ باقی ہے. جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں. اگر کوئی ساتھی فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. ممبر کے پاس سکندر بھائی کو جمع کروا دیں، اور جو بھائی باہر گیٹ کے پاس ہیں، آگے آنا مشکل ہے، وہ گیٹ کے پاس غلام رسول بھائی کو جمع کروا دیں. اچھا ایک منٹ رک جائیں، 1 منٹ 1 منٹ. صفیں درست کر لیں. آن کر دو. آن دے کر دے. مل جائیں، صفیں درست کر لیں. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات ہوں گی. ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کریں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے. اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات ہوں گی. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے. مل جائیں، صفیں درست کر لیں. اللہ اکبر. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। मेरे भाइयों, हमारी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक जो उसका तकाज़ा था पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। फिर ये बरकत वाला दिन ईद का दिन भी नसीब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना। हर कौम की एक ईद होती है, एक खुशी का दिन होता है, तो ये हमारी ईद है। एक हदीस जो ईद उल फितर की मुनासबत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, वो हर ईद पर मैं आपके सामने रखता होता हूँ। आज भी आप सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा कानत गदातल फित्री, जब ईद उल फितर की सुबह होती है, बअसल्लाहु अज़्ज़ा व जल्लल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते फ़ी कुल्ल बिलादिन, हर इलाके में ज़मीन में भेजता है। फ़यहबितून इलल अर्ज़, वो ज़मीन पर उतरते हैं। फ़यक़ूमून अला अफ़वाह सिकक, और वो चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। फ़युनादूना, आवाज़ लगाते हैं। बिसौतिन यस्मअ मिन खल्क़िल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल इल्लल जिन्न वल इंस, उनकी वो आवाज़ जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूक़ात सुनती है। फ़यक़ूलून या उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उख़रुजू इला रब्बिन करीम, अपने कर्म करने वाले रब की तरफ निकलो। युअतिल जज़ील व यअफ़ू अनिल अज़ीम, वो तुम्हें जो तुमने कमाइयाँ की उसका बदला अता करे। और फ़इज़ा बरज़ू इला मुसल्लाहुम, जब ये लोग अपनी ईदगाह की तरफ आ जाते हैं, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लिल मलाइकती, फरिश्तों से फरमाते हैं, मा जज़ाउल अजीर इज़ा अमिला अमलहू, जब कोई मजदूर अपनी पूरी मजदूरी कर ले तो उसका क्या बदला होना चाहिए। फ़यक़ूलुल मलाइकतु इलाहना व सय्यदना जज़ाउहु अन तुवफ़्फ़ा अजरुह, तो फरिश्ते कहते हैं, ए हमारे इलाह, ए हमारे आका, उसकी यही जज़ा है, बदला है कि उसे पूरा पूरा अजर दे दिया जाए। क़ाला फ़यक़ूलु, फिर अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नी उशहिदुकुम, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ, या मलाइकती इन्नी कद जअल्तु सवाबहुम मिन सियामिहिम शहर रमज़ान व क़ियामिहिम रज़ाई व मग़फ़िरती, ये जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते रहे और नेकियां करते रहे, क़याम करते रहे, मैं इनसे राज़ी हो गया और इन्हें मैंने माफ़ कर दिया। वयक़ूल, और फिर अल्लाह फरमाते हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो, सलूनी, मुझसे सवाल करो, मुझसे मांगो। फ़वा इज़्ज़ती व जलाली, मुझे मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, ला तसअलून अल यौमा फ़ी जमइकुम, इस मजमा में तुम जो भी मुझसे मांगोगे, ले आखिरतिकुम, चाहे वो अपनी आखिरत के लिए मांगो, इल्ला आतैतुकुम, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। वला लिदुनिया इल्ला नज़रतु लकुम, चाहे दुनिया के लिए मांगो, मैं वो भी तुम्हारे नज़र कर दूंगा। फ़वइज़्ज़ती व जलाली, मुझे मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम,
ला उख़्ज़ीकुम वला अफ़ज़हुकुम बैन अस्हाबिल हुदूद, मैं अब तुम्हें रुसवा हरगिज़ नहीं करूँगा। इनसरिफू मग़फ़ूरन, जब तुम वापस जाओगे तो तुम बख्श दिए गए होगे। और कद अर्ज़यतुमूनी फ़रज़ीतु अन्कुम, तुमने मुझे राज़ी करने की कोशिश की, मैं तुमसे राज़ी हो गया। जब ये जुमला बोला अल्लाह तबारक व ताला बोलते हैं फ़तफ़रहुल मलाइकतु, तो फरिश्ते खुश हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सआदत है। मैंने मुख्तसरन ये हदीस जो इस ईद उल फितर की मुनासबत से थी उसका तर्जमा आपको सुनाया, और आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला आपको आइंदा भी नेकी करने की तौफीक दे और दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, यतीमों और बेवाओं का वैसे ही ख्याल रखें जैसे अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं है जो नए नए कपड़े पहन ले, व अकल सरीद, और अच्छे खाने खाए, वलाकिन्नल ईद लिमन कुबिल मिन्हु बिल अम्स सियामुहु, ईद उसकी है जिसके रोज़े कबूल कर लिए गए, जिसके रोज़े, जिसकी इबादतें कबूल कर ली गईं। असल ईद उसी की है। व कुबिल मिन्हु क़ियामुहु, उसका क़याम कबूल कर लिया गया। व गुफ़िर लहु ज़ंबुहु, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए, उसकी असल ईद है। व शुक्र लहु सायुहु, और उसकी जितनी कोशिशें थीं उसकी कदर की गई। फ़हाज़ा हुवल ईदु, ये है ईद। अल यौम लना ईदुन, हमारी तो आज भी ईद है, व कल भी ईद थी। और फरमाया व कुल्ल यौमिन ला नअसिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फीही ईदुन, फरमाया हर वो दिन जिसमें हम अल्लाह की नाफरमानी से बच गए वो हमारी ईद का दिन है। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सी मुनकरात हैं जो नापसंदीदा काम हैं अल्लाह के यहाँ, वो अल्लाह उनसे मना करता है, उसका रसूल उनसे मना करता है। ईद के मौका पर, खुशी के मौका पर हमारे यहाँ बहुत से वो काम होते हैं। मैं तवज्जो दिलाऊंगा आपको। फरमाया कि तकब्बुर से बचें। तकब्बुर अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं, और टखनों से शलवार, पैंट, चादर कुछ भी ऊपर से लटका देना, टखने ढक जाएं, तो ये मना है, ये तकब्बुर की अलामत है। लिहाजा हर किस्म के तकब्बुर से बचें। इसी तरह ईद के मौका पर, खुशियों के मौका पर खूब गाने बजाने होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सौतानी मलऊनान फि दुनिया वल आखिरा, दो आवाज़ें हैं जो दुनिया और आखिरत में उन पर लानत की गई है। मिज़मारुन इंद निअमतिन, जब कोई नेमत मिले, कोई खुशी मिले, उस वक़्त मौसीकी, उस वक़्त सारंगी और उस वक़्त बाजे बजें। और फरमाया वरन्नतुन इंद मुसीबतिन, और जब कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें अस्तग़फिरुल्लाह बैन करने लग जाएं। और ये दोनों आवाज़ें, बैन की आवाज़ जो अमूमन मौत पर की जाती है, और ये आवाज़ जो मौसीकी की आवाज़ है, ये दोनों आवाज़ें हैं जिन पर लानत की गई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक ये बात भी कि दाढ़ी उड़ाना भी मुनकरात में से है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वाफ़ुल लुहा, एक जगह है वफ़िरुल लुहा, दोनों का माना है दाढ़ी बढ़ाओ, वफ़ुश शवारिब, और मूछें कटाओ, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की, यहूद व नसारा की जो है मुखालफत करो। बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है। इसी तरह मेरे भाइयों, ईद के मौका पर गैर महरम औरतों से हाथ मिलाए जाते हैं, ये भी मना है।
इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह हमारी मुसलमान औरतें ईद के मौक़ों पर, खुशी के मौक़ों पर बेपर्दा बाहर फिरती हैं, बन सवर कर बाहर निकलती हैं, ये भी शरीयत में मना है। और गैर महरम औरतों के साथ खलवत में रहना, अकेले में रहना, ये भी दुरुस्त नहीं, इससे भी रोका गया है। इसी तरह मर्दों का जो अंगूठी सोने की पहनना, ये भी मना है। तो इन मुनकरात से हमें ईद के मौका पर बचना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह कुछ अमल मसनून हैं। ताक खजूरें खाकर, अगर 7 खजूरें खाई जाएं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, मसनून है। वैसे ताक खजूरें 3, 5, 7, 9 ये खाकर मस्जिद की तरफ आना, यानी ईदगाह की तरफ आना, ये मसनून है। पैदल चलकर आना मसनून है। इसी तरह रास्ता बदल कर जाना, ताकि हर रास्ता आपके लिए गवाही दे कि ये अल्लाह के लिए आया था और ये इस रास्ते से वापस गया। हर रास्ता आपके लिए गवाही दे। इसी तरह ईद की नमाज से न पहले कोई नफल है, न बाद में कोई नफल है। और जब भी मिलें तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम मिनका के अल्फाज कहना, ये भी मसनून है। और आखिर में शव्वाल के 6 रोज़े रखना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। अगर हर साल ऐसा करेगा तो पूरी ज़िंदगी के रोज़ों का सवाब मिल गया। तो ये अमल भी ज़रूर करना चाहिए। हदीस में जो आता है अतबाहू के अल्फाज हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद साथ ही पीछे 6 रोज़े भी लगा दे। रूटीन बनी होती है, आसानी होती है। वैसे शव्वाल में किसी वक़्त भी वक्फे से भी रोज़े रखे जा सकते हैं। मेरे भाइयों, अब हम दुआ के लिए अपने हाथ उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। और यकीनन हम सब दुआओं के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम सब के हाल पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन को के दर्जात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पर लगा। ऐ अल्लाह, जो फौत शुदगान हैं, जिनकी बीवियाँ, जिनकी औलादें, जिनके वालिदैन, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे खैर का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, हम पर खैर नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, हम पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे लिए जन्नत में अपने पास घर बना दे। ऐ अल्लाह, हम पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हासिदों के हसद से बचा। ऐ अल्लाह, हमें शैतान के वसवसों से बचा। ऐ अल्लाह, हमें और हमारी औलादों को नेक और नमाजी बना, नमाज़ों का पाबंद बना। ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया व आखिरत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें तकवा और ईमान अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें झूठ और रियाकारी से बचा। ऐ अल्लाह, हमारी आँखों को ख़यानत से बचा। ऐ अल्लाह, हमारी बीवियों को, हमारी अज़वाज और औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना।
اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جن گھروں میں رشتے ناتوں کے مسائل ہیں اے اللہ ان کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات درست فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروباری معاملات درست فرما۔ اے اللہ ہمارے نیکی کے معاملات ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں اور دلوں میں وسعت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا۔ اے اللہ ہمیں قرض کے غلبے سے اے اللہ ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمیں پاک اور حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری ساری مشکلات دور فرما۔ اے اللہ نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ہم پر کوئی ظلم کرے۔ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دے۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما جو تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں ایسا خوف پیدا کر دے کہ تیرے ساتھ نافرمانی کرنے سے بچ جائیں، گناہ کرنے سے بچ جائیں، اور ایسی اطاعت نصیب فرما کہ تیرے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اے اللہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہماری اس مسجد کے ذمہ داران میں سے 3 بھائی تینوں ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے، خالد صاحب، شوکت صاحب، حافظ عارف صاحب۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کے اگلے راستے آسان فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست ان کے بیٹے اخلاق صاحب، وہ اور ان کی والدہ اخلاق، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے علاوہ جتنے فوت شدگان ہیں اور جو اس مسجد سے متعلق تھے یا نہیں ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری تراویحاں، ہمارے قیام، اے اللہ ہماری جتنی نیکیاں ہیں، صدقات ہیں، اور جو ہم نے فطرانے دیے ہیں اے اللہ سب نیکیاں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا رحمن۔
آپ کے والدین بچاؤں کو بھائیوں سب کو جنت الفردوس میں